अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनीस हाजी यूनुस कांगड़ा। पहले तो मैं आप सबसे एक विनती करता हूं कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी हुई है। कई लोगों से मैंने रब्ता किया हुआ है, पूरा डिटेल जाना हुआ है, और मेहरबानी करके आप सब लोगों से विनती है कि ये जो वीडियो है बहुत बड़ा लंबा है, 3 जनों से बात हुई है, और आप लोग से एक ख़ास विनती है कि ये जो सत्य हकीकत है, बाटवा के अंदर में जो मस्जिद है उसके अंदर में देखो धोरा जी के जो नागे बावे की टीम और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और इसमें कौन सही है कौन झूठ है। और मैं हाजी यूनुस भाई से माफ़ी तलबगार करता हूँ, क्योंकि मैंने वो ना बोलने के हिसाब से भी मैंने उनकी जो ऑडियो है मैं वायरल कर रहा हूँ, क्योंकि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर के लिए हमें मतलब कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। और ख़ास करके और इमाम साहब से मैंने कुछ भी इजाज़त नहीं लिया है कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ। अगर जो उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो उनके लिए हम जिम्मेदार है, और उनका मतलब कि पूरा जवाबदारी हम लेंगे, उनको कोई भी आँच नहीं आने देंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग से एक विनती है कि ये पूरा वीडियो सुनो, बहुत लंबी क्लिप है। शायद हो सकता है कि कुछ हमारे मुस्लिम समाज के अंदर में अगर जो ये देखने सुनने से कुछ हो सकता है तो आगे बात बढ़ेगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हाजी यूनुस भाई, किए हो बा? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। खैरियत है, दुआ है जी भाई की हो। બસ અલ્લાહ રસૂલ જા કરમ ના બધે ભાઈજી દુઆ નહીં કે બોડી પેલા ફોટો મોકલ્યા ને તો હું ગોળ ના કરું માં મેં કે જૂનો ફોટો કે ઊનો આવી જો તો બીકે અહીંયા બે નવા ફોટા ને આવી બાટવા જાય જા પૂરે જા બાટવા બેસી જ જા બાટવા વ્યાવાય હા બાટવા વિની આવ્યો, ધારી આવ્યો, બધો જૂનો ધોરાજી જમાત માં વિની આવ્યો છે, ઇનકે ગાલ બધી કર્યો છે. તો બાટવા બોતેલી પહેલા જ વ્યાવું ના નહીં? હા 12 તારીખે નારો તારીખે લીધી है हाजी साहब. હા હા બીકે ફોટા આવ્યા તો એથી મસલો ઉભો થયો ને કોળો કામગીરી કરી જરા કાંઈ થોડીક મતસર નિવેદન મેં ક્યાંય જણાય ના કોળો હકીકત ડીસલ લાઇબ્રેરી ને કોળો ધોરાજી જમાતજી અહીં કે ધોરાજી જમાત તો અસાજે મેં આઈ કે જો એકાઉન્ટ ને બધો પાછી કાગળિયા ને બધો ઓકે આઈ. હા 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 એટલે પાછા આઈ કરો પછી ક્લિપ ના રહી જા. ના ના બીજી ગાલ છોડો ના ક્લિપ આવી ને આ ચૂના તો આ ની જાહેર કરા આખરી ગાલ છોડો આ અહીંયા ને અડધી સુધી પાછી એટલી ગાલી થયો તો કદે કોઈ બી ક્લિપ વાયરલ થઈએ ના એનો કારણ કરો હાજી સાહેબ કે પછી જમાત માં વ્યાસી ને બધું પૂછ્યા છે. હા હા હવે એ લોકોએ કઈક 98,000 રૂપિયા કે મદદ કરી આય. કે મદદ કરીએ મસ્જિદ વાળે કે ખાલી અચ્છા કે ધોરાજી જમાત હા 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 અને ઈ જો બિલ ને એ 98,000 રૂપિયા વાઉચર બનાવીને સામે વાળા મોકલી દીધી આય. તો અમુક સમય પહેલા મેં કે અમરેલી આવી આવા હા કે ધોરાજી વાળા નહીં એ પાંચ કામ વાળા બધા જમવા ઉડાજા બાટવા વાળા બરોબર. હવે પાંચ કે આવી આવા તો એ 2 વાગે સવારે આવ્યા ને 12:30 વાગે લગભગ એમ કે 1,20,000 રૂપિયા જેડે દીધીનું એમ કે રકમ કરીને બરોબર. હા પછી ચાલો મેં કે થયો કે હવે એ પેલા તહેકીકાત તો કરી છે પૂરવાય હકીકત ને તો એટલે નારીને આવજો રૂબરૂ ના દે તો ખર્ચો તો એ લોકોએ ઘણો કરી આય. બરોબર. હા 2 લાખ રૂપિયા પોરબંદર થી ને ગીની આવ્યા. હા 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 અને પછી ભાવનગર એમ ત્યાં મોકલ્યો. ભાવનગર થી કાલે 58,000 રૂપિયા ભાવનગર થી થયા. માશાલ્લાહ કામગીરી તો ખબર હે પાકે. હા પછી અને પછી આવું તો રૂબરૂ વિના આવું પછી રૂબરૂ વિના નારીઓ થી તો થોડો ઘણો હજી કમ બાકી આય. બરોબર. તો આ કે ફોટા ને બધું પાડીને વ્યવસ્થિત મોકલો, સીધો એકાઉન્ટ નંબર મોકલો એટલે એકાઉન્ટ માં અહીંયા ખાતામાં પૈસા જમા થયા, રોકડા કોઈ કે નહીં મળ્યા. બરોબર. ડાયરેક્ટ ખાતો હોય એમાં પૈસા એમાંથી અહીંયા યુઝ કરીને અહીંયા જમા કીના પૈસા આવી ગયા, કેટલો માલ કીને પૂરો કરી અહીંયા ચોપડો રજીસ્ટર બનાવીને ઓડિટ કરાવીને. બરોબર. એ બધો એને સલાહ સૂચન કરનું આવ્યો હોય અને રૂબરૂ વિની આવ્યો યા. બરોબર. એટલે પાંચ લગભગ બનો ને કે 20 જેડો થયો, આજે 80 જેડી વ્યવ તો બોક્સ જેડો 5 ઇન્શાલ્લાહ ત્યાં ગોઠવી દી નાખી. એ 98,000 રૂપિયા કડેરી ત્યાં ધોરાજી જમાત વાળા હે
ધોરાજી જમાતર 98,000 કાઢી દીધી એની કે એ તો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, અહીંયા તો વાઉચરે અચીવ્યો ને ચેકે અચીવ્યો ને જેની માલકીની અહીંયા બિલે અચીવ્યો અને બાટવા જમાત ગયા. બરોબર. બે ઠેકાણે સર્વે કર્યા, બે ઠેકાણે अजी साहब इनमें करो वो कि मुझे पाछो गुडा है ने धोराजी हूँ एक्चुअली शादी में व्यो सी હા 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 અને વલીમાં બપોરે 2:30 વાગે એટલે હું સવારે પછી નીકળ્યો છે તો એ લોકો બિચારા રાત 4 વાગે તો આવી આવા બધા. બરોબર. ઇનमें એવું હે કે આજે ભેગો પાંજે આસિફ કરીને આય આસિફ તુંબી કરીને દાઢી વાળો આજે બાજુમાં બોય ઓળખના હોના લગભગ. હા 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 જોઈ ને મેં ભેગો માણાવદર આવ્યો હોય ને વહીના ગड्डी में હાણે ઈ કોરો હકીકત આકરી સા કે કેટલે ટાઈમ થી આ લેખ લખાતો એ પોતે મકાન કઈક વાપરે તો એડો આવી ને. હા પોતે બી મકાન ઈ વાપરે તો ઉડા બી અકરી આ કે સ્ટોરી તોડાયા ઈ આસિફભાઈ ને આસિફ ઈ મહેમાન જે ભેગો આફ્રિકા કામ કરનો એ છોકરો બી આફ્રિકા કામ કરનો બીજો બચપન જો દોસ્તાર હે ને ઇન્ટરનેટ જો બોડી જે જીતી કરીને આવી ને ઇજે ભેગો છોકરો કામ કરે તો ને ધોરાજી અંદર મેં બી ઘણી બધી પ્રોપર્ટી જમાજી બધા કરતા હરતા જ દબેલા. મેન ગાલ ચૂંજો કરવું હોય કે બાટવા ગામમાં જેને પાર્ટીશન થયો ઓલ ટાઈમ જે મતે 22 મસ્જિદ ઉભ્યો આકડો મારું મહેનત કરી અને એ બધે જમીનો રિલીઝ કરાય ઇટાણે બાટવા જે અંદર મેં જો એસટી ડેપો હોય ને બરોબર એ બી મેમણજી જગાય મેમણજી જગ્યા તો હાજી સાબુડા પુષ્કળ હે કબ્રસ્તાન જબરદસ્ત 35 વીઘા में કબ્રસ્તાન હે. બીજી ગાલ છોડો પછી અબુભાઈ જો જગા દબાઈ અહીંયા પોતે કલર જો કારખાનો રાખીએ ને એને પીછવાડે મસ્જિદ હે मस्जिद के अंदर में दलित समाज जो बोर्ड लगेलो वो उन टाइम जे मथे इंटरनेट ने फोटो पाड़ी आविया तो बोर्ड निकलेलो तारो मारेलो है અને મસ્જિદ के अंदर में कोई दी टूनता का बीजेपी जा होदेदार नता ही नता હું પછી રેલવે સ્ટેશન માટે મસ્જિદ આઈ ઇન જો ઝુમર ને લાખો રૂપિયા પ્રોપર્ટી એ બધે હાલ વેચાણી ઓ ટાવર વાળી મસ્જિદ આઈ ઈ જો કાટમાળ જો એને કેસ કરી આવા ઈ બી ને પેન્ડિંગ થયું હોય ઇનમે પછી જનાયું સિદ્ધિ ઉડા દારૂ પીવાનતા ઉલટે માં યુટ્યુબ ચેનલ ના ચાલુ કરો મોટી ને ઇન્ટાડે આવ્યા ના તો ही मस्जिद अंदर में बोर्ड लगेलू है इजी करता हरता उनके अंदर में इन्हें धोराजी वाला ध्यान ना दीधी सुन्नी मुस्लिम कमेटी ये जुमा मस्जिद जो करता हरता करी रही है आई खबर हो तो अंदर में बोर्ड मारेलू है आई 3 जणा कोक बीजी कोम जाय एकड़ो पिंजारो आय હા એકડો કોક સંધિ આય મીજે ચલતી 3 જણા આય અને જડે ઇની જો બાકડો મારું એડો કામકાજ કરી ને ધોરાજી મેમણ જમાત કે પોતે કામ સોંપી તો ધોરાજી મેમણ જમાત જો ફરજ બને તો કે ગમે એડાથી બી કરીને મસ્જિદની દેખરેખ કરે છે જો મસ્જિદો નહીં એનો ફતવો ગીની હતી ને એ મસ્જિદ જો પૂરો કરે જો એ પ્રમાણે કર્યો ખપે ને કે આખરી મસ્જિદે ખુલ્લા મુંડા જો સાચવનો ને એ બી કે 4 લાખ રૂપિયા માથા કે દીનું હોય બોલો આ વિડિયા બી તને જાહેર કરું મોટી અને એની કરવું હોય કે આકડો તો માલ દબાઈનો એને આજે ભેગા છે ને પછી ખોટા વાયરલ કરના કે અસાયું ના નારો એ બધે કામકાજ કરું છે અને બાટવાજી આખી મસ્જિદો ધોરાજી જે જમાતે સોંપેલી હું તો ફરજ કીજો બને તો બનાવજો એ તો જમાતો જ બને તો હું થયો છે આજે સાહેબ એ થયો છે આવું પાછા ગોડિલ કેરાય હા હાબીદ ગોડિલ હા ઇન કે હું થયો છે કે ભાઈ પાણી જવાબદારી નીચે તો પાણી કે તો હવે જેટલો ભંડોળ હોય એ પ્રમાણે કરવું તા ને બધે કે ચુયાયો કોઈ પૈસા છે તો પાછી દીજે નારો એનો ભંડોળ પીઆઈ ને અમુક રૂપિયા પીઆઈ બાટવાજા બરોબર હે બાટવાજી મસ્જિદે જા રૂપિયા પીઆઈ જો જૂના ભારૂત ને બધે નહીં ને એ પૈસા ચંદા ભાડા ચીઠ્ઠી બદલની હું તો ઇન્ડિયા પૈસા ચંદા તો આડી સુધી કોઈ કે પબ્લિકે બતારી નહીં સુપેરી વિનો તો સુપેરી અંદર મેં વીરાન જમીન પીએ ઉડા જના ખબર હે બીજા ખબર હે આજે સાહેબ પાંકરું હોય હા તો પાંજે તો જે દીનું હોય પા નારી પાકે લગી કરંજ હોય તો પાંજે રીતે પા કરી ને પાંજે કામ સોંપી ને પા હલીએ જ પાંજે તો અલ્લાહ જે ગરજો કે પા હિસાબ આ ઇન્ટા ફોટો દીધું ને તો મીકે બહુ ખુશી થી મીકે ઈ કે ફોટો મોકલી ને બોડી પેલા જો આ અગાતી નો ઉપાયો તો આજો એકલો ફોટો હો તો આ જો પછી આઈ ના આ કરો કે ઇન્ટા અમદાવાદ જઈયા તો મીકે કા જો પછી આજી પાછી આ ગાલ કરનો થી આવ સમજ્યા મીકે કા આ મીકે કા જૂના વિયાઓ ને તલે જો ફોટો ને હાલ કરો તબિયત ઠીક નહીં રહેલી તે બે બધે કમજે હિસાબે કરવું હોય મેન ફરજ બને તો કે ઇની જે બોડી છે એટલા ટાઈમ થી લડી રહ્યો અહીંયા ઇની બહુતે મસ્જિદો કાટમાળ વેચાવ્યા પોલીસ પરકાવી સમાધાન લઈ કરીને તો કુડો થયો કુડો ના થયો તને ઊંડેમ ને મતે આંસુર મોટલે બધે કે ખબર હે કે 15 જી ઓફર કરી અને પોલીસ કેસ થયો હોય હાજીભા તો આજે 55 વર્ષ સુધી તને પોતે સેક્રેટરી હોય અમિતભાઈ ને ઇન્ટરના પ્રમુખ આય ને પોતે બીજેપી જો વડો પોતે કાર્ય કરાય
તો પોતે ઉડા જો કબજો ને કરી આવું તો પોતે નિકાલ નહીં કરી શકતા? કરી શકે આને ઉડા જો પૈસા ઉડા જો છે તો ભાડો બાડો ને જૂનો જો ભાડો બાડો નથી તો એ તો અબુભાઈ ઉઘરાય તો એ વાંધો ના હવે એ આમ તપાસ કરી કે અહીંથી જોતા ને અબુભાઈ ત્યાં પૂછા અહીં ભાડો ઉઘરાયો તો અહીંયા કેટલા પૈસા જમા થયા. અકરી મીઠી જાય ને અકરી મીઠી ને તો બાકાયદા દુકાન ખોલીએ પોતે દુકાનને રેસિડેન્ટ કરીએ આ વચલોથી ભેગો ને બીજો અહીં કે હાથી જોડીને અકરી વિનંતી કરાતો કાંઈ કે રજા દિયો તો તાકે ખબર પોય કે નારો ઉડા એ પોઝિશન નહીં ને યુનિફાઈ ને બધે કામગીરી કરી આવીને એ કોઈ ગુનાજો કામ નહીં કાંઈ કોઈ ગીલા ગેબત નહીં કરી અકરી ગાલ છોડો આ કોઈ જે ગીલા ગેબત નહીં કરી આ બહુ સારો કામ કરી આવ્યો કે આજે અહીંયા 11 આવ્યા ને એ પ્રમાણે મસ્જિદો કમ થયો અને મીકે લગે તો કે 11 બી મસ્જિદો બી કમ થયો મસ્જિદો વીરા નહીં પાંજે બ્યોકી કરજો નહીં ફતો કીધી હાજી સાહેબ એડા ગુરુ એકચ્યુઅલી કે મૂળ પાંજે પિંજી ઘર મુસલમાનો જાય એટલે બીજી ગાલ કરજો કુરું હોય કે જૂની મસ્જિદ હોય તો વિરાન પીવું તો એનો પાંજે ફતવો મંગાઈ નું હોય એ મેં કે જો કરતા ફતવો મંગાઈ નાખા 3 વર્ષ સુધી ફતવા નહીં આવ્યા તો ઇજો ઇસ્લામી કાયદે પ્રમાણે પૂરો જો નિયમ હોય એના પૈસા પીવા એ જાણનું ખપે બરોબર હા તો અહીટાણે મસ્જિદ ખુલ્લી પીવું હોય ઉડા જનાખોરી વિરાન મેં દારૂ જુગાર બધે કી રમાઈ નો હોય ને બે જાણા કબજો કરી આવું સમાજ ની અંદર મેં એ મીઠી ની અંદર મેં કાયદેસર બોર્ડ લગાવીને કબજો કરી કે નહીં આવું ને એ બધે નહીં ને તું બી જો બી આવ રિમાન્ડ ચલાવો થી આવ હમીદ ગોટી હજી સુધી બીજો ફોન ને ઉપાડનો ના મસ્જિદ પાંજે કોણ જો હોય તો ધોરાજી મેમણ જમા દ્વારા ફોન ઉપાડે તું બી કે બીજું મોટી મી કે તું ગાલ કરાય જો મારું કે ખબર હે કે હજુ 22 મસ્જિદ હોય એ સર્વેલે 3 મસ્જિદ એટલે સર્વેલે વિયા કડે વિયા કે અહીંની કામગીરી 11 વધી હું મારું બધે બહાર નીકળ્યા કડે કરેલા ડિસલ એ સર્વે કરેલા વિયા કે હવે કાટમાર કેટલો બચ્યો ને પાંજે કેટલા રૂપિયા ચલા પાંજે ઘર બે કેટલા ભરાય ના બરોબર હે એ જો ફોટી જો જસ એ લોકો ગીની વિના કોણ કરના તો આ મી કે રજા દિયો કે પબ્લિક કે ખબર પોય સચ્ચી હકીકત ખબર પોય ને એ અલ્લાહ જે ઘર જો કમે આ કોઈ ગિલા નહીં કરી બીજી ગાલ છોડો ના સારી તો પાંચે ક્યાં કોઈ પણ માળો આવજો કે એ તો પા ઉડાવીને ડાળજે તો પાકે અલ્લાહ તાલા જે હિકમત દીધી હોય એ પ્રમાણે પાંચેથી જે મદદ થી પાંચેથી જે કમ થી એ પા કરી દીજે બરોબર આય ઠીક है मीके आ इजाजत दियो कि आओ यहाँ ने क्लिप वायरल करा मीके 12 तारीखे अल्लाह जे घर ले કરી દે આ સચ્ચી ગાલ માં ચાલો આ એકડી બીજે પેલા મીજે ગાલ સુનો આઈ કે ની ફ્રી યો આઈ ઉડા અચી શકના તો પા બોય પાછા વિન જાય ઇન્શાલ્લાહ સડે તો અચન ને ધૂમ ધરાકે થી વચન જોયા ઉડા વિનન જોયા ધૂમ ધરાકે થી બરોબર હે બધે જે મીડિયા જે મથે ઇન્ટરવ્યુ બી બધે જા છે ને ધોરાજી જમાત જે અંદર में પકડું હોય કે બીજી તબિયત ઠીક ના રહે ને ઇન્ટાણા અમદાવાદ અને અમદાવાદ થી આવ આકડો બહુ કમ લાવી નથી ને મી કે કમ ઘટી ના ચુનો તો મી કે આટલો રોકાઈ નો ધોરાજી અંદર में अच्छा तो आ इंटरनेट क्लिप वायरल करा बरोबर है आज रजाई दे बस ना भाई साहब ना रेन जो मुझे गाल छोड़ो पांजे अल्लाह तरफ से पांजे बदलो मुझे गाल छोड़ो आज रास्ते जोड़ी राय में ना छोड़ा तो नहीं करा दारो अल्लाह जे घर जी गाल है ना हक गाल है कोई खराब गाल है ये फोटे जो फायदो बीओ पाड़ना ना जे पहला फोटा पाड़ी आव्या ने तो दुबई अफ्रीका लंडन ये फोटा वायरल थी आवा चंदेला करी दे ताकि खबर पोए पब्लिक के सच्ची हकीकत बता रहा कारण ही ना ही हकीकत है आई के आई तो ये वास्ता दिया तो सच्ची आई कोई जी गिला नहीं करिया बरोबर है कोई जी गिला नहीं करिया आई एकड़ो बीके रजा दियो आई के खबर है ना आ तो आई ना तो आई के दोस्त तरीके अमुक वस्तु मोकला के पांजा कोमजा आकड़ा खिदमतगार आए पण હવે મી ફોટા ઘણી બધી જગા થી બી આવી ઇનમે આઈ જો ફોટો અમુક જગા જે માથે ફોટો નહીં આઈ જો નીકળી ગયો હોય એટલે સચ્ચી હકીકત લે કરી ના ચાતો અલ્લાહ જે ઘર લે કરી દે ચાતો આઈ બીકે પેલા બીકે ક્લિપ બનાવીને મોકલો સુણા પછી તો હાજી સાહેબ આઈ કે હા કી પાંજી કોઈ વેરી ગાલ નહીં થી બરોબર ગાલ હે ઠીક હે આ કે ક્લિપ भी મોકલા તો ને મીજો लिखाण भी YouTube पे मथे जा रखलो थी બધે ફોટા બોટા ને આની ક્લિપ બરોબર હે तो પેલા બીકે દેખાડ્યા ઇમે કોઈ પાનારો હાજી સાહેબ પાંચો હરેક પાંજો તો કમ કેડો હોય બધાય જો કોમ જોઈ કમ થયે ને દિન જોઈ કમ થયે કાલ ઉઠીને બીજે તરફથી જે કે હાજી સાહેબ એ બધો હેડો ચાલુ કરી તો પછી મીંજે માટે થોડો ખરાબ છે ના હેડો ખરાબ જી ગાલ દે સામે કુરું હોય ખબર આય કે ક્લિપ મોકલા તો ही કુરું હોય ખબર આય કે ધોરાજી વાળા આંગે બદનામ કરી વિજના આ બહુ વર્ષથી લડી રહ્યો અહીંયા
कोई जस ना ॾे तो की ना आई के जस ना मिले तो आई तो खबर है कि जामनगर में बि આવી हुआ ने पा उते पा कीटू ने पा वेची आवासी बदन की खबर है ना आई दीदी आवा હા आंजे હા द्वारा હા ने आव तो रिक्शा नंबर सुधी आंगे मोकलू बोसे कीडा सुधी की के देवाणियो इना मोबाइल नंबर सुधी पा ના ના એ તો અહીંથી ગલ તો બિલકુલ સહી है એટલે- પણ અહીં ના નહીં તું નથી તો પેલા મેં કે બનાવીને મોકલજે आंगे बनाने मोकला तो डाकड़ो मैसेज पब्लिक के दीदिया के भाइयों दोस्तों इंटरनेट पर जो गाल करी रही हूँ हाजी यूनुस भाई मोहम्मद खपे ट्रांसपोर्ट वाला अमरेली ने बहु नेक ने सारो कम करना होंदा ने कदे भी कोई इजहार नहीं करना के असाई कम करियासी के ना करियासी એટલે બાટવાલે કરીને કોઈ બી અગર જો ધોરાજી મહેમાન સમાજથી કે બે કોડેથી મેસેજ હશે તો મહેરબાની કરીને પ્લીઝ યુનુસભાઈથી આ કોન્ટેક્ટ કરજા કોઈ આડેવડી જગા જે મસે કોઈ પૈસા માંડી જા કોઈ જે બહેકાવે में माच जा ने क्लिप जे नीचे आवे ना हाजी यूनुसभाई जा मोबाइल नंबर आव रखी दी हुई ने दुआ करो કે ઈ મારું અવિયાય ન ગયા ને હજી બી પાંજે એની વટેથી ઘણો બધો કમ ગીરનું હોય બધે કે દુઆજી દરખાસ્ત થાય ને દુઆ में याद रखजा ठीक है हाजी यूनुसभाई आंजो कीमती समय ॾिनी आहे आंजो बहुत बहुत हाँ। खूब मेहरबानी आभार हलो आंगे मोकला ठीक है बा ओके ओके हाँ अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। हजरत मैं अनीस कांगड़ा बोल रहा हूँ जामनगर से क्या मैं बाटवा जुमा मस्जिद के इमाम साहब हजरत इस्माइल साहब से बात कर रहा हूँ क्या जी जी अच्छा हजरत बहुत खुशी की बात है कि मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी जी क्या आप 5 मिनट दे पाएंगे मेरे को जी जी। अच्छा मैं आप कितने टाइम से हजरत वहाँ पे बाटवा के अंदर में और कहाँ के हैं आप मैं असल जो है मैं नांदर की मांग रोड जो है बाजू के अंदर है ना गाँव असल हाँ। गुजराती हूँ अच्छा। और 12-15 साल से हूँ हाजी साहब। बहुत माशाल्लाह बस तो फिर आप मेरे से बहुत ज्यादा आपसे जानकारी हासिल हो पाएगी अच्छा ये जो अभी जामा मस्जिद का काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के जो बंदे हैं आपने भी बहुत अच्छी कोशिश किया यूनुस जी। भाई अमरेली वाले से भी मैंने राब्ता किया जी और बहुत आपकी तारीफ किया और बहुत अच्छा काम हो रहा है तो हजरत बाटवा के अंदर में तकरीबन कितनी मस्जिद है बाटवा के अंदर ऐसे 15 मस्जिदें हैं और 50 मकान है। अच्छा तो नहीं मैं मस्जिद के सिलसिले में ही बात करूंगा मैं धोराजी का हूँ और जामनगर रहता हूँ मैं मोहम्मद जमा से मैं राब्ता कर रहा हूँ जी तो फिलहाल तो 22 मस्जिदें थी अभी सब लोग बोलते हैं 16 मस्जिद तो कई 4 मस्जिद तो ऐसे ही कि उसका मतलब कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ता तो जी। ये जो मस्जिद का काम है तो वो जी। तो धोराजी मेमन के अंदर जमात के अंदर मस्तक है ना मस्जिद तो जी जी। तो कभी वो धोराजी वाले ने मतलब बात नहीं हुई मस्जिद की रिपेयरिंग वगैरह के बाबत में आते हैं लेकिन आकर देख कर चले जाते हैं और 98,000 रुपये उन्होंने दिए। कितने हजार दिए 98 98,000 हाँ 98। 98,000 दिए तो जी। ये जो किराया है तो किराया जी। तो बेमन जमात को ही जाता है जाता है लेकिन वो डिटेल जो है आज साहब हाँ। इसके अंदर क्या है वो आप ट्रस्टी से बात करेंगे तो ये क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना हाँ। ट्रस्टी इनसे नाराज नहीं ये इनसे राजी नहीं इस तरह अंदर का मामला है। अगर मैं बताऊं तो फिर मौलाना है तो फिर यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। हजरत आपने कंगड़ा भाई को क्यों बताया नहीं क्योंकि तो इससे पहले है ना हाजी साहब का फोन पहले भी आया था। हाजी साहब तो कल रूबरू आए नाश्ता हाँ। वगैरह किया मस्जिद हाँ। बताई जगह बताई हाँ समझे हाँ। बटवा के हालात बताए इससे पहले भी उन्होंने कहा था लेकिन आप जो कह रहे हैं ना उसके अंदर सच्चाई भी है हाँ समझे क्या सही बात है। पहले 22 से कोई 29 बोल रहा था कोई 30 बोल रहा है। 22 से मैं वहाँ पे आके सर्वे भी किया हूँ और जी। कई मस्जिदें मतलब उसके अंदर में दुकानें बना लिया है कई बेचने के लिए बात कर रहे हैं और कई जी। गैर मुस्लिम मतलब है वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हाँ, कब्जा बराबर बोल रहे हैं। दलित समाज का है वहाँ का जो वो छुड़ा लिया से वो है? दलित जो बोल रहे हैं ना वो छुड़ा लिया अपनों ने। छुड़ा लिया ना हाँ, वो क्यों? शादी हाँ, किसने छुड़ाया वो जगह वो मेरा ख्याल थी यहाँ की जमात ने दोनों जमात ने मिलकर छोड़ाया। अच्छा लेकिन जी। अभी भी ये लोग जो बता मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे जी। बड़ा मैदान है और अबू भाई का जो कलर का जो कारखाना है ना जी हाँ अगर हाँ वो कलर वगैरह करते हैं ना फुल हाँ हाँ वहाँ फूल बड़ो नाला वगैरह है वहाँ पे अभी भी लोग लगा हुआ है कई समय पहले बोर्ड लगा हुआ था दलित वही समाज जो बोर्ड अभी भी ऐसे वही बोर्ड है लेकिन अच्छा। वो कब्जा अपना है। अच्छा तो फिर अगर जो कब्जा अपना है तो बोर्ड क्यों नहीं हटा रहे बोर्ड अगर जो नहीं वही हटाएंगे बात है बोर्ड क्यों नहीं हटाते सही बात बोल रहे हो आप हाँ समझे। हाँ ये तो सब ऐसी बात है दिल के फकोले जाग उठे सीने के दाग से ऐसा मामला है यहाँ। हाँ, अभी हाँ। वही जो आप बोल रहे हैं वही बोर्ड लगाया है अबू भाई के घर के पीछे हाँ जिम बताओ खाना। हाँ बरोबर हाँ जिम खाना हाँ बरोबर
तो वो तो कल जी। सुबह में पूरी मस्जिद भी कब्जे हो जाएगी। नहीं हवे ना होते पहले थी ऐसे अपने कब्जे से बाहर थी वो। लेकिन कब्जे से बाहर थी, कब्जा आके तो बोर्ड हटाना आराम लाजमी से हो हटाना जाता है। जी अगर जी जो समझ लो आपके घर पे मेरा बोर्ड लगा हुआ है सालों जी से, और मैं अगर जो समझ लो, मैं घर तो नहीं बोलता, दुकान पे लगा हुआ है बोर्ड मेरा, जी और आप नहीं हटा रहे, सबको जी मालूम है कि बोर्ड लगा है, लेकिन मैं अगर जो घुस गया मैं दुकान में, तो जी साबिती यही होगी कि भाई ये इनका बोर्ड इतने साल से लगा हुआ है। जी और मैं वहाँ पे आया था, और कई जी मस्जिदों में जनाखोरियाँ होती है, सही बात दारू है होता है, जुगार होता है, कई ऐसा ऐसा मैटर है कि सही इसके बात अंदर है कई कई मैं वहाँ पे मैं मुलाकात भी किया हूँ। और मतलब ये है कि 98,000 रुपये दिया है, तो दोहरा जी जी मेमन जमात है, उनका फर्ज बनता है काम कर, ये जो पूरा 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 जितनी मस्जिदें है वहाँ की जो बाटवा मेमन जमात है, और बाटवा मेमन जमात है वो दोराजी मेमन को लेके चलती है। अब जी जैसे कि आप जुमा मस्जिद है, देखो जुमा मस्जिद में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे किराएदार है, उसका जी किराया आता है। फिर जो 100 भारत के, दुकानें हाँ कितनी 100 100 दुकान है, ठीक है। अब वो दिया है 98 दिया है, तो फिर मस्जिद का पैसा कहाँ पे गया? जी जी मस्जिदें चेंज होती है, दुकानें चेंज होती है, तो उनका हाँ उनका उनका किराया आता है ना, भाड़ा चीटी जी बदलती है, तो कुछ 10-20% ऐसा कुछ देना पड़ता है पागड़ी के हम्म पैसे में से। तो हम्म मस्जिद का पैसा कहाँ गया वो दिखाते ही नहीं है। और माशाल्लाह मस्जिद में एक बार आया था, तो वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम जमात का बोर्ड लगा हुआ था कि वो लोग काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई वहाँ पे जो आदमी लोग है वो हम्म मस्जिद को आबाद रखने में उन लोगों का हाथ है, दोराजी मेमन का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। जी जी वो सिर्फ आते हैं देखने के लिए कि अभी हम्म कितना मलबा बचा हुआ है, हम कितना बस बेच के बस 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 हम वही हमारे बात जेब के पड़ेंगे। अगर जो इसकी हाजी साहब जो ये मस्जिद का काम जो शुरू किया ना उसके अंदर वो रजा दे ही नहीं रहे थे अच्छा अच्छा बहुत सालों से हम कहना ऐसी लटक गई थी इसके अंदर नलिया वगैरह हाँ हाँ कि हाँ अगर कोई पेशाब खाने के अंदर जावे ना तो ऊपर से अगर एक नलिया वगैरह पड़े ना तो हाँ आदमी इंतकाल कर जावे हाँ फिर हाँ भी मैंने कहा इनको बताओ तो अगर जहाँ સુધી दोराजी से रजा नहीं मिलेगी ना हाँ, वहाँ तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे सही तो बात फिर है। आपने बहुत ज्यादा जो वो करे ना तो एक मरतबा सब आ जावे चाय पानी पी जावे देख जावे फिर हम्म। जवाब ना दे फिर वापस बुलावे फिर इस तरह रजा भी नहीं दे रहे थे कि इसका काम करो आप हाँ, ऐसा मामला है तो वही ना देखो, मेरे ख्याल से मैं 25 साल पहले आया था ना, जब भी 2 मस्जिदें चालू थी। एक हाँ एक जामा मस्जिद चालू थी, और एक हाँ बाजार की मस्जिद जहाँ पे बाटवा हाँ मेमन जमात के ऑफिस है, और बराबर है वो चालू थी मस्जिद 15-20 साल पहले। मैं तो इसके, मस्जिद गिर गया है सर हाँ वो अंदर की साइड में तो गिरा, कब का गिरा हुआ है, मलबा वो गिरता रहेगा, और ये कोई ना कोई उठाते लेंगे, अंदर से कई कई सारा माल तो गायब हो जाएगा, सागवान जी के दरवाजे, लकड़ियां बकड़ियां, क्योंकि इससे पहले भी केस किया हुआ था धोराजी वालों ने। वो जो टावर वाली मस्जिद है उसका मलबा किसी ने बेच डाला है। आप हाँ देखो तो ये जो रेलवे स्टेशन की मस्जिद है, इतनी हाँ आलीशान मस्जिद थी, जब धोराजी वालों को दिया गया था कि कई लाख रुपए के अंदर जुमर थे, पूरा खत्म है। कई इसके बाजू में पूरी हवेली है, वो कब्जे के अंदर में। एक मस्जिद है, वो कोई फकीर लोग दबा के बैठे बेचने की बात कर रहे, मतलब कि इतना, मतलब ये जो अभी स्कूल है वो पहले मदरसा था, तो वो कम से कम वो मलबा है ना, तो ये जो स्कूल बोल रहे हैं वो नहीं है, तो हाँ 15-20 लाख तो अभी फेंक दो तो आ जावे। जी अब उसमें मैंने जुगार खेलते हुए वीडियो वगैरह मैंने वायरल किया था। ऐसे जी बहुत सारी लड़त है। मेरा अनिश कांगड़ा मेरा नाम है हजरत, जी ठीक है। और मेरा तो नंबर सेव कर लेना। सलामकुम। हेलो। सलामकुम वालेकुम। गफार भाई, जी बोलो क्या? मैं अनिश बेमन बोल रहा हूँ जामनगर से। कहाँ से? जामनगर से। बोलो बोलो बोलो। और मेन मूल वतन मेरा धोराजी है। अच्छा। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप बाटवा के अंदर में माशाल्लाह जुमा मस्जिद का जो काम कर रहे हैं, और वो काबिले तारीफ है। और बराबर सही है। मैं वहाँ पे कई बार आ चुका हूँ जुमा मस्जिद में, लेकिन अच्छा बदकिस्मती से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मेरे फोटो वायरल हुए हैं इसके अंदर में। अच्छा। हाँ 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 हाँ। और यूनुस भाई माशाल्लाह, यूनुस भाई की तो वैसे कामगिरी बहुत अच्छी है, कोई यूनुस भाई की। हाँ हाँ यूनुस भाई अपने। हाँ यूनुस भाई है, उनकी भी कामगिरी बहुत अच्छी है। तो अमरेली, हाँ। हाँ अमरेली वाले। तो गफार भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुम्मा मस्जिद है, जितनी भी मस्जिद है बाटवा के अंदर में,
अभी तो जी। खंडर हो गई है, कई लोगों ने दबा लिया है, कई ने बेच डाले, और कई के अंदर मैं उसके पहले आया था, मैंने वीडियो शूट भी किया था बाकायदा, और उसकी चरवट भी हुई थी, और कई मस्जिदों में तो हरामखोरी है और सब कुछ। ये जो हमारे धोराजी वाले जो है जमात के, अल्लाह उसको नेक तौफीक दे और नेक हिदायत देवे कि एक अल्लाह ने ओहदा दिया है तो एक कामगिरी करे। तो बस सही। तो आपको इन लोगों ने कितने पैसे दिया जमात से? ये इन्होंने 1 लाख में 2,000 कम, 98,000। 98,000 रुपया दिया। तो जी हाँ। गफार भाई जी। मस्जिद को जो दुकानें वगैरह है, तो उसकी जमात को, बाटवा जमात को आवक भी है मस्जिद की? जी, इसमें क्या है, मेरी बात सुनो। हमारे आवक है ना, वो पुराने जब फारूक है पुराने 1979 से। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है। तो वो तो पैसा मतलब कि ये धोराजी वाले जमाती लेती है ना पैसा तो? नहीं 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 नहीं, ये लोग हम बाटवा के अंदर ही ये यूज करते हैं। इसमें क्या है, देखो अभी यहाँ की इनकम है ना 25,000 की इनकम है, 22-25,000। और मसाला ये सब खर्चा भी होता है। इसमें तीन पगारदार। मेरी बात सुनो तुम। हाँ, मौलाना का पगार है 6,500 रुपया। मेंटेनेंस। ये तो अपने बात की बात है। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि इन लोगों को अभी आपने लिया है ना हाथ में, इसके आपने जो काम लिया है मस्जिद का, मैंने देखा है, उसके अंदर बोर्ड लगा हुआ था कि बाटवा सुन्नी जमात के हस्ताक्षर मतलब काम चल रहा है, वो जो अंदर में, और अंदर में कलर ने ये सब कुछ भी बहुत माशाल्लाह किया हुआ था। तो जो पहले जो मस्जिद की इनकम जो पड़ी है मस्जिद की, कब ये जो आपने कुछ 8-10 साल से लिया है ना मस्जिद का काम, तो आपके ट्रस्ट ने, तो इसके पहले जो मतलब कि ये जो अबू भाई वगैरह पैसे चंदा वगैरह वसूल करते थे, तो वो कभी आपको हिसाब दिया इन लोगों ने? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। ये लोग हम चंदा कर रहे हैं। हाँ, वो तो अभी हम वो हमारा, मेरी बात सुनो, आपको मैं बता दूं। पहले ये लोग धोराजी वाले आए थे, हम लोगों ने कई बार इनको बोला कि देखो ये मस्जिद ये है ना, ये बिल्कुल ये गिर जाएगी, नीचे हिस्सा सबको लकड़ा बकड़ा सब गिर जाएगा, इसके लिए तुम हमको पैसा दो। कितनी बार लोग आए गए। फिर इन्होंने बोले कि 1 लाख रुपए हम नहीं देंगे, 98,000 इन्होंने दिया। इसके बाद हमने बाटवा के अंदर से, हमारा काम था 3 लाख रुपए का पहले। बराबर है। 3 लाख के जगह हमको मिले 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए मिले, तो हमने सोचा कि भाई आगे का भी पुराना काम हो चुका है। बराबर है। फिर हमने ये काम चालू किया। बराबर। धीरे धीरे ये खर्चा हुआ 14.5 लाख के आसपास। ओ बाप रे। हाँ, 14 लाख के आसपास खर्चा हुआ। इसके अंदर से हमने 10-11 लाख रुपए तो जमा करके ये पूरा काम कर दिया। अभी थोड़ा काम बाकी है, 3-4 लाख रुपए उसमें कम पड़ रहे हैं। अच्छा, समझिए आप। और इनुस भाई कल ही आए थे बाटवा के अंदर। हाँ, और उन्होंने सब देखा उन्होंने, और बहुत खुश हुए वो इनुस भाई। सर सही बात होता, काम करते ये नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे भाई। ठीक है। ये मेमन जमात ने, धोराजी मेमन जमात ने आपको कब पैसे दिया? ये इन्होंने दिया 1 साल हो गया इसको, 11 महीने। अब अंदर पुरानी बॉडी वालों ने काम दिया, तो अफरोज भाई नहीं, अफरोज भाई थे, जब अफरोज भाई थे। अफरोज भाई थे, और अमित भाई गोडिल सेक्रेटरी थे। हाँ, लेकिन मतलब कि वो अफरोज भाई प्रमुख थे, तो उनके अभी अमित गोडिल प्रमुख बन गया है। अच्छा, अब आपसे बात कर बहुत मेरे को खुशी हो रही है। तो वहाँ पे जितनी भी मस्जिद है, मैंने आया था, तो एक मस्जिद में, बाजार में जो मस्जिद है उसके अंदर में अबू भाई ने दुकान बना लिया है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। हाँ, तो क्या बिल्कुल गलत बात है। आप मेरी बात सुनो, आप जामनगर से बोल रहे हो ना? हाँ, मैं जामनगर, वैसे धोराजी का ही हूँ मैं। अच्छा, जामनगर से बोल रहे हो, धोराजी के आप? हाँ, बराबर। यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, हम लोग धोराजी के हुक्म के बिना कोई चीज नहीं बना सकते यहाँ। अच्छा, हाँ। धोराजी के हुक्म होगा तो ही होगा। अबू भाई के घर की मिलकत नहीं को कर ले। अबू भाई ने तो इसमें खून दिया इसके अंदर। नहीं, मैं इसके पहले आया था ना, एक है ना, देखो वहाँ पे एक मस्जिद है, अबू भाई का जहाँ कारखाना है ना, कारखाना, वो अपने फुलवाड़ी बोलते, क्या बोलते, उसमें कई पूरा मैदान है, मैदान। अच्छा, वहाँ की बात कर रहे हो, धोराजी की बात कर रहे हो? धोराजी नहीं, अपने बाटवा में, बाटवा
बाटवा के अंदर कोई फुलवाड़ी नहीं है, कोई वो नहीं है, वो गलत बात है। वो नाला है, मैं आ गया हूँ, मैं नाला है, एक मस्जिद है और मस्जिद के बाहर एक मतलब ऑफिस है और ऑफिस के ऊपर दलित समाज का बोर्ड लगा हुआ था। वो पे नहीं किस का बोर्ड लगा हुआ था? अबू भाई का वो घर का है, घर और कारखाना का है। हाँ सही है सर, हाँ सुन लिया। वो मस्जिद अभी ऐसे ही वीरान पड़ी है। हाँ पड़ी है, तो मैं वही में बोल रहा हूँ कि इसमें वो मस्जिद, मेरी बात सुनो, वो मस्जिद ऐसे वीरान पड़ी है। मेरी बात तो बताता हूँ मैं आपको, उसका पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ आपको मैं। वो मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है, वो इबादत गाह था। मेरे को मालूम है मेरे भाई, जितनी मस्जिदें है ना मस्जिदें, मैंने सर्वे किया, मैं रेट नहीं बोल रहा हूँ कि मस्जिद हमारी है और दलित समाज का बोर्ड लगा हुआ है। दलित समाज ने पूरा मतलब के आधा भाग कब्जे कर लिया है। कई लोगों ने वहाँ, हाँ वो खुद मैंने देखा है, बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, अभी बोर्ड है कि हाँ। मेरी बात सुनो, वहाँ क्या है, मेरी बात सुनो, वो जो मस्जिद थी ना मस्जिद, हाँ मस्जिद, वो पूरी मस्जिदें वीरान पड़ी है। और इससे पहले मैं 22 साल पहले आ चुका हूँ, वहाँ पे 2 मस्जिदें चालू थी, एक जुमा मस्जिद है और बाजार के अंदर में जो यहाँ पे अभी जो बाटवा मेमन जमात की ऑफिस है, अंदर दरगाह है, वो मस्जिद भी खंडर भी, मस्जिदें सब खंडर हो गई है। मस्जिदें 22 मस्जिदें थी, इसमें 5-7, मेरी बात सुनो 5-7 मस्जिदें जो है ना, 5-7 मस्जिदें, हाँ 5-7 मस्जिदें अपनी बिल्कुल तामीर है, वो सही है। इसके अंदर अपने लोग रह रहे, वो फकीर है, 2-3 फकीर है, उनको हमने रखा हुआ है और वो कब्जा भी अपने पास है। आप जो बोल रहे ना, वो जिम खाना क्या था? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे देख चुका हूँ, मैं सिर्फ अभी की हालत पूछ रहा हूँ। मैं एक टावर अपने स्टेशन वाली मस्जिद है, बरोबर है, कई साल पहले उसका मलबा भी बिक गया है। इसके बाजू में एक हवेली है, वो भंगार वाला वो हाजी शरीफ मस्जिद जिसका मलबा बिक गया। अरे हाँ, मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ का क्या किया था, मैंने वहाँ पे सर्वे किया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ ये मस्जिद है, फिर एक दूसरी मस्जिद है जो अपने टावर वाली मस्जिद है, उसमें भी फकीर रह रहे, ठीक है। और इसका एक मलबा बेच डाला था किसी ने, दादा लोग ने, और हमीद गोडिल ने कई साल पहले केस किया था। वो मस्जिद नहीं है, हाँ, वो हाजी मूसा बिल्डिंग है, हाँ हाजी मूसा बिल्डिंग है, और हाजी मूसा बिल्डिंग के वो बिल्डिंग है। एक बाजार की मैं भी बात कर रहा हूँ, बाजार में टावर। और अपने ये जो मस्जिद है, तो ये क्यों दलित समाज ने दबाया हुआ है? नहीं, वो कोई किसी का नहीं है, अपने पास सब पूरी अपनी दलित समाज का कोई नहीं है वहाँ पर, गलत बात है ये। अरे मैं खुद आके देखा हूँ, मैं वहाँ पे जो अबू भाई का जो घर है ना, अबू भाई 22 साल पहले की जो आप बात बोल रहे हो ना साहब मेरे, 22 साल पहले मैं आया था और अभी 2 साल पहले मैं आके गया हूँ। मैं 2 साल पहले मैं आया था, मैं वहाँ के वीडियो उतारा मैं। और वहाँ पे जो अबू भाई, एक मस्जिद के जो आगे की साइड पे मैदान है, सामने स्कूल है और मस्जिद के इस साइड पे अबू भाई का कारखाना है और घर है। फिर इसके बाद में बिल्डिंग है, ठीक है। फिर अपने इसके पीछे की साइड पे जाते हैं तो एक दुकानें बना के, मतलब मस्जिद का जो हिस्सा था वहाँ पे दुकानें बना के दुकानें बिक गई है। फिर एक देखो तो इसके पीछे की साइड पे है कि जहाँ पे कबाड़ी के दरवाजे वगैरह ने पड़ा हुआ है, अंदर की साइड में जाओ तो जंगल बिल्कुल है, वो मस्जिद भी वीरान पड़ी हुई है, ठीक है। और इसकी पीछे की साइड पे जाओ तो एक मस्जिद है, उसके अंदर में 2 भाई रहते फकीर, उसका मैंने वीडियो लिया था। वो मस्जिद का बोल रहे कि हमारे को 4 लाख मिलेगा तो हम कब्जा छोड़ देंगे। तो मेरे को कहने का हाँ। अच्छा, वो रेलवे स्टेशन के बाद की बात कर रहे हो? रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहे, रेलवे स्टेशन के तो खत्म हो गई बात। अबू भाई के जो घर के पास आते हैं, फिर अपने बाजार में आ गए, फिर बाजार में से जो निराती वाले की चाली है, इसके सीधा अपने जाते हैं ना, वहाँ पे दुकानें नहीं बनाई हुई 5-6। वो दुकानें तो पहले से, आज के नहीं है, पहले से वो। हाँ तो है ना, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि इतना रुपया जो है वहाँ पे, तो ये लोग मस्जिद की पुरानी जो दुकानें वगैरह है वो भी बाटवा जमात का अबू भाई हद तक वहाँ का काम काज है वहाँ पे। नहीं। दोराजी मेमन जमात ने किसको काम सौंपा है? दोराजी मेमन जमात ने किसको सौंपा है काम? अबू भाई को। हाँ बरोबर, अबू भाई को। तो वहाँ पे जो कितनी दुकानों का पैसा वगैरह तो अबू भाई उठाता है ना। हाँ वो किराया आता है ना उनका। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, किराया तो आता है ना सबका। फिर जो मस्जिद का पीछे का हिस्सा है, बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर में अबू भाई ने कारखाना डाला है। गलत है? मेरे बात सुनो, वो है ना मस्जिद का हिस्सा नहीं है मेरे साहब। अच्छा,
वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, हाँ तो ये मस्जिद का हिस्सा नहीं, वहाँ तो मकान है सब पूरे। अरे हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, मस्जिदों को तोड़ तोड़ के दुकानें नहीं, भी मस्जिद बिल्कुल नहीं टूटी, मस्जिद बिल्कुल टूटी, मस्जिद तो उसकी जगह पे है। अरे मस्जिद का आगे की साइड पे हिस्सा है जहाँ पे दलित समाज का बोर्ड लगा हुआ है, पीछे एक नाला है, बाजू में नाला आता है, नाला क्रॉस करके अंदर में जाओ गली के अंदर में तो पीछे की साइड में अबू भाई का घर है। हाँ जो दुकान है ना, दुकान है, हाँ तो वो बाटवा नगर पालिका ने बनाई है, हमने अबू भाई नहीं बनाई है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कौन सी, आपको हिंदी भाषा आती है, मैं क्या बोल रहा जा रहा हूँ कि जो कुछ भी है बाटवा का जितना भी जो कुछ भी है काम काज है वो दोराजी मेमन साहब जमात को सौंपा गया और दोराजी मेमन जमात तो अबू भाई को सौंप दिया ना काम। ना वो काम ये कर रहे हैं, बराबर। हाँ तो आपने अभी कबूल भी क्या कि अबू भाई पैसे वसूल कर रहे हैं। फिर बाजार में जो दुकान है, एक दुकान है, दुकान के बाजू के अंदर में रास्ता है, शटर वाला रास्ता है, मालूम है ना, शटर खींचते हैं, वो शटर बंद रहती है और अबू भाई की जो दुकान है, दुकान में से अंदर में जाने का, अंदर में अबू भाई का रेसिडेंट है। वो सही है क्या गलत है? वो सही है। तो फिर जो गेट, मेरी बात सुनो, जो गेट के बाजू में जो वो गैरेज है ना, दो गैरेज, हाँ गैरेज है, अबू भाई की दुकान है और दुकान मस्जिद का दरवाजा, नमाज तो होती ही नहीं है उसमें। नहीं वो वहाँ नहीं है, वहाँ दुकानें नहीं है मेरे साहब, वहाँ नहीं है दुकान। अरे मेरे को एरिया नाम मालूम नहीं है, या तो फिर आप मेरी बात नहीं समझ सकते या फिर मैं कोई गलत आदमी को फोन लगा। देखो अबू भाई की बाजार में जो दुकान है ना, बाजार में रेलवे के बस स्टैंड के पास, वहाँ पे मस्जिद है ना, मस्जिद जहाँ पे अबू भाई की दुकान है। अबू भाई की दुकान है ही कहाँ वहाँ? अरे अबू भाई की और उनके भाई की कोई की दुकान है ना कपड़े की। किसी की दुकान नहीं है वहाँ, अरे दुकान नहीं है वहाँ। अरे मैं आपको समझाना मुश्किल मेरे को पड़ जाएगा, मैं ऐसे समझ। बाजार में जो स्टेशन अपने जो बस स्टैंड है उसके आगे जाते हैं, अपने राइट साइड अपने मुड़ते हैं तो शटर मस्जिद बंद है, शटर है और इसके बाजू में कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान नहीं है मेरे साहब, कोई दुकान नहीं है। कपड़े की अथवा ये लोग रंगाट काम करते हैं ना, रंगाट काम की दुकान है वहाँ पे। दुकान नहीं है मेरे साहब, वो घर में कर काम कर रहे हैं, वो दुकान कहाँ है वहाँ? अरे हाँ पर घर का काम करते हैं ना, घर का काम, कलर काम करते हैं ना। हाँ कलर काम करते हैं। हाँ कलर काम करते हैं ना, तो वो मस्जिद है ना, पुरानी मस्जिद है ना। मेरी बात सुनो, मस्जिद उसकी जगह पर है, मस्जिद में से ईंट भी नहीं हिली, वो घर पे काम कर रहे हैं। मस्जिद नहीं हिली, मैं वो बात तो मैं समझता हूँ, मस्जिद नहीं हिली। आप बोलो मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह है। हाँ लेकिन वो उसकी जारी बंद कर दिया है, और जो मतलब रंगाट का बोर्ड लगा हुआ है ना कलर काम करने का, उसके अंदर में जाते हैं अपने, तो उनका रेसिडेंट है और मस्जिद का भाग बंधा हुआ है। मस्जिद ऐसे ही है मस्जिद, लेकिन मस्जिद के अंदर में पूरा कपड़ा वगैरह रखा हुआ है उन लोगों का, और मैं अकेला कबूल नहीं करता, पूरा गांव कबूल कर रहा है वो। पूरा गांव का, या तो मैं तो आपको समझा नहीं पा रहा या फिर मेरी आप बात समझ नहीं रहे मेरे। आज इतनी मस्जिद है, 22 मस्जिद है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 22 मस्जिदों के अंदर में एक मस्जिद जुमा मस्जिद छोड़ के कई मस्जिदों में कब्जा हुआ है, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, कब्जा हुआ है? बिल्कुल नहीं, 15 मस्जिद है, 22 मस्जिद नहीं है वहाँ, 15 है। कितनी है? हाँ मेरे सर्वे के मुताबिक 22 है, चलो 15 बोलते हैं, ठीक है। 15 मस्जिद है, 15 मस्जिद में एक ही मस्जिद चालू है ना, एक ही जुमा मस्जिद चालू है। हाँ एक ही, दूसरी मस्जिदों में कब्जा हुआ है ना, दूसरी मस्जिदों में सब अपना कब्जा है। अरे मेरा भाई आपका कब्जा बोल रहे हैं, आपका कब्जा कहाँ पे होगा? आप जुमा मस्जिद अपने जमात पूरे अपने पास ही मस्जिद है। कौन सी जमात? वे दोराजी जमात के पास है पूरा। तो दोराजी जमात ने आपको काम सौंपा है? जी नहीं, दोराजी मेमन जमात आपको काम सौंपी है? जी दोराजी जमात यहाँ जो हम किराया वसूल करते हैं, हाँ। मकान का, दुकान का, इसका उसका किराया वसूल कर रहे हैं हम लोग दोराजी। तो वो तो मतलब कि दोराजी वालों ने तो अबू भाई को रखा हुआ है। रखा तो है, मालूम है मुझे, मालूम है, रखा है तो उसको रखा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने अब दोराजी मेमन जमात, अब ये कंफ्यूज करना मुश्किल है कि दोराजी मेमन जमात ने आपको काम दिया है या अबू भाई को दिया हुआ है? अबू भाई को काम दिया हुआ है, मैं भी वहाँ जाता हूँ, मैं भी काम करता हूँ वहीं पर। आप मतलब कि जॉब से काम करते हो उनके पास या आपको काम सौंपा गया? देखो कोई भी है ना, एक ही आदमी को काम सौंपा जाता है, वहीवटदार एक ही रहता है। हाँ। और आप बोल रहे हो कि सब मस्जिदों का कब्जा आपके पास है, ठीक है, मैं आपके हाथ वहाँ पे आके मैं बताऊंगा, या तो फिर आप डर रहे हो और सही बात बताने से आपको डर लग रहा है, या फिर आप कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो आपकी जुमा मस्जिद है, मैं सर्वे बता दूं, पूरा सर्वे बता दूं, मैं अभी अहमदाबाद में जुमा मस्जिद है, ठीक है,
जुमा मस्जिद के अंदर में सामने की साइड पे झाड़ियों के अंदर में एक मस्जिद है, पुरानी हाँ। खंडर पड़ी है, ठीक है। फिर इसके बाजू के अंदर में मदरसा है जो पूरा जी। खंडर हो गया है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ। वहाँ पे जो अब जुमा मस्जिद से कम 500 कदम दूर है और मस्जिद के बाजू में, तो उसमें जनाखोरी होती है, दारू पीवाता है, जुगार रमाता है। तो आप कहाँ पे गए थे जब मस्जिद के सामने? तो वो क्यों नहीं बंद करा सकते? ठीक है, चलो फिर अपने रोड पे आते हैं जहाँ पे वहाँ पे अपने समझ लो कि वो उसके मस्जिद है, मस्जिद के अंदर में दरगाह है और बाटवा मेमन जमात की ऑफिस है, जी हाँ। ठीक है। और इसके अंदर में कोई बिहारी कोई आदमी था, गैर मुस्लिम जैसा मेरे को दिख रहा था, वो उसका हैंडलिंग कर रहा है, ठीक है। नहीं, वो बिहारी नहीं, वो कासम भाई का वो इंतकाल हो गया उसका रमजान में। हाँ, इन्ना लिल्लाह राजिऊन। चलो, तो अब वो तो बताया ना मैंने से। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो टावर वाली मस्जिद है, उसके अंदर में फकीर लोग रहते हैं, जी हाँ। ठीक है। चलो फिर इसके पीछे की साइड पे जाते हैं तो एक मस्जिद है और मतलब कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है दरगाह का, और वहाँ पे कोई दो भाई रहते हैं, फकीर लोग के लड़के रहते हैं। हाँ सही है हाँ। ठीक है, उसका मेरे पास वीडियो पड़ा है, वो खुद बोल रहा है कि 4 लाख रुपए मेरे को जगह देनी है और उसी के बाजू के अंदर में नई दुकानें बनाया हुआ है, ठीक है। वो मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं वो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। फिर इसके पीछे अपने जाते हैं तो जहाँ पे पटेल पाड़ा कहलाता है और बाहर की साइड पे चूने दरवाजे लकड़े वगैरह ऐसे पड़ा हुआ है और खंडर नुमा एक दरवाजा है, दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो अंदर में कोई जा भी नहीं सकेगा, इतना पूरा मतलब कि उसके अंदर में मजमा भरा हुआ है। वो भी मस्जिद है ना, वो भी पुरानी पड़ी हुई है ना, उसमें भी घुस जाते हैं। फिर अपने आगे की साइड पे आते हैं जहाँ पे अबू भाई का मकान है, ठीक है। हाँ, वो जो मैदान है वो भी जमात का था, आज दूसरों ने दबा लिया, ठीक है। और मस्जिद के आगे की साइड के अंदर में जो दरवाजा है और एक ऑफिस नुमा है, उसके अंदर में दलित समाज का बोर्ड लगा हुआ था 2 साल पहले। और अब ठीक है, अभी भी वो कई लोगों ने बोला है कि वो आप हटाना नहीं चाहते, वो बोर्ड भी लगा हुआ है, सही बात है। वो मालूम नहीं, मेरे को मालूम। तो फिर आप वहाँ पे रहते हो, मैं बाहर का आदमी हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप छुपा रहे हो, 100% आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। वही मैं छुपा के क्या करूँगा भाई? अरे मेरे भाई, मैं बाहर का आदमी बैठ के आपको बोल रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि मेरे को मालूम नहीं है। ऐसी तो 15 मस्जिद है ना, 15 मस्जिद का बता दो। जब आपके हाथ में काम दिया है धोराजी वालों ने, तो मस्जिद के अंदर में जनाखोरी दारू जुगार होता है, तो आपकी फर्ज नहीं है बंद करवाना? तो वहाँ अभी तो कोई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा अभी, तो मेरे को मालूम है। क्या नहीं होता? आप बोलो जनाखोरी हो रही है, दारू पी रहे हैं, वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। मैं अगर तो आपको वहाँ पे आप वीडियो भेजा और वहाँ पे आके मैं बताया तो बता दो, कोई बात नहीं। नहीं, बता दिया तो आप क्या करेंगे? और मेरे को फाइन बताओ कि मैं क्या फाइन करूँ, और ये तो आप क्या फाइन करोगे? चलो हाँ, नहीं बता दो आप क्या है करके। अरे नहीं, मैं वहाँ पे आके साबित कर दूँ तो पूरी जिंदगी फकीरी ले लेंगे, नहीं तो मैं फकीरी ले लूंगा, दुनियादारी छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा। बोलो मंजूर है? ऐसा है नहीं भाई, मेरे को मारो बात सुनो, मेरे को कोई ऐसा मालूम नहीं है। तो फिर आप गांव के रहते हो, मालूम नहीं है, बात कर रहे हो, कुछ भी इसमें डाल में काला है, अबू भाई के और आपके बीच में कुछ भी डाल में काला है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाँ। दोस्तों, इसमें कई सारे फ़ोटो गूगल पे से लिए गए और मस्जिद की कंडीशन 3 साल पहले कैसी थी, किसी बंदे ने रखा हुआ है। और हो सकता है मैं गया था जब ये शायद दावत इस्लामी का भी बोर्ड लगा हुआ था। तो दावत इस्लामी कई मस्जिदों का निभाव खर्च वगैरह करती है। अभी इसके अंदर में कुछ शंकाशील भी बाबत है कि अगर जो दावत इस्लामी ने मस्जिद लिया था और पूरी जिम्मेदारी कई जगह पे ऐसा रहता है कि दावत इस्लामी पूरी मस्जिद का रख रखाव जानवरी खर्चा वगैरह सब करती है, तो इन लोगों को सब जगह पे क्यों जाना पड़ा और सही में जो बजट है उतना ही खर्च हुआ है या अलग खर्च हुआ है? इसमें बहुत सारी मतलब कि विरोधाभासी बात निकल सकती है। आइंदा हम जाएंगे बाटवा के अंदर में, पूरी तहकीकात करेंगे और आपके सामने पूरा डिटेल बाई पूरा हकीकत आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना।